آرمی کی وطن عزیز کو دہشت گردی کے ناسور سے پاک کرنے کے لیے جنگ جاری ہے۔ شمالی وزیرستان میں گھریلو ساختہ بارودی سرنگ کے دھماکے میں فوج کے 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ ISPR کے مطابق دھماکہ شمالی وزیرستان کے علاقے ایشام میں ہوا۔ بم پھٹنے سے 42 سالہ نائب صوبیدار جاوید اقبال اور 38 سالہ نائب حسین احمد شہید ہو گئے۔ نائب صوبیدار جاوید اقبال کا تعلق اٹک اور نائب حسین کا تعلق اوکاڑا سے تھا۔ ISPR کے مطابق علاقے سے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی، جس میں اسحاق ڈار کی واپسی کا فیصلہ ہو گیا۔ سرائے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہی اسحاق ڈار پاکستان آنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ اس بارے میں حتمی فیصلہ آج ہو جائے گا۔ واپس آ کر وزارت خزانہ سنبھال لیں گے۔ ملاقات میں عمران خان کے لانگ مارچ سے نمٹنے سے متعلق پلاننگ پر غور بھی کیا گیا۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں، لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی، اسحاق ڈار کی واپسی کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہی اسحاق ڈار پاکستان واپس آنے کا پلان بنا رہے ہیں، جس بارے میں حتمی فیصلہ آج کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کی رہنماؤں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مبینہ آڈیو شیئر کر دی۔ آڈیو میں ایک آفیسر بتا رہا ہے کہ مریم نواز اپنے داماد راحیل کے لیے سفارش کر رہی ہیں، جس کا پاور پلانٹ انڈیا سے امپورٹ ہونا ہے۔ شہباز شریف مان رہے ہیں کہ اس کا ری ایکشن آئے گا، البتہ رحیم یار خان میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے پلانٹ کا کام کروا دیں۔ کام سر کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیک آیا۔ کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راحیل، یہ کوئی وہ مجھے دیا کیا کیس دیا، آپ اس کو دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب، بات سنیں نا، اس کا طریقہ ہے نا، مجھے رات بات کی تھی، he's her son-in-law and very dear to her and rightly so کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ ملنے کہ جی یہ ایشوز ہیں، یہ میرے خیال سے 2 کام ہونے بتایا سر۔ ایک ان کا گریڈ اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ، وہی ہے نا، ایسا ہی ہے سر۔ ہاں تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے سر۔ ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ECC میں، پھر آئے گا کیبنٹ میں۔ اب پرائم منسٹر کی عزیز فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ فیملی کا انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر، آپٹکس نہیں، یہ بالکل گلے پڑ جائے گی بالکل، میں مانتا ہوں۔ تو اس کو آپ پہلے بتا دیں، پھر میں اسے خود بات کر لوں گا بڑے اچھے طریقے سے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ دوسرا جو کام ہے نا سر ان کا میپکو والا، جو گریڈ اسٹیشن کی انہوں نے اتحاد پارک بنایا رہی خان میں، وہ ہم کرا رہے ہیں۔ 2 کام بتائے تھے۔ پہلا تو میں نے کہا جی میں بھی لگ جاتا ہوں۔ اتحاد پارک کیا ہے؟ کوئی محل ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہوں گے سر، تو ہاؤسنگ سوسائٹی پہ اپنا گریڈ اسٹیشن بنانا پڑتا ہے۔ وہ ایک نیشنل وے میں ہو جائے بس، وہ تو ہو جائے گا سر، وہ تو روز لوگ کراتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ لیکن یہ جو ہے نا سر انڈیا سے مشینری لانے والا بڑا فلیک آئے گا۔ جی جی، اور پھر چپکے سے آ جاتی ECC میں لے جانا، وہاں ڈسکس ہونا ہے اس نام سے، پھر کیبنٹ میں ڈسکس ہونا۔ اس کو آپ بات کریں، پھر میں جب لندن سے اب ٹرکی سے آؤں گا میں خود بلا کے سمجھا دوں گا۔ میری رائے تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحب کی ڈیوٹی لگائیں، وہ کر لیتے ہیں سر۔ وہ بڑے میاں صاحب سے گاڑی بھی انہوں نے ریویو کرا لی تھی، وہ پھر نہیں گئی سر۔ ٹھیک ہے، پھر اس طرح کر لیں۔ جی سر، اس طرح کر لیں، ٹھیک۔ باقی سر بات کریں سر، یہ عامر الیاس رانا بھی کل ہمیں فواد صاحب بھی ملے تھے، یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں سر کہ بہت تسلی کر لیں، یہ مقبول باقر میں آپ وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے کی تھی جاوید۔ فائنل کال اس وقت دوں گا جب میرے مخالفین سمجھیں گے کہ عمران خان پیچھے ہٹ گیا ہے۔ چیئرمین PTI نے احتجاج کی کال کے حوالے سے نئی پلاننگ بتا دی، کہا فائنل کال کے بعد کوئی جلسہ، کوئی دھرنا نہیں ہوگا۔ مجھے پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کیا کرنا ہے، لیکن رانا ثناء اللہ کو نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں امریکی سائفر کی تحقیقات کا مطالبہ دہرا دیا، کہا اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، پتہ نہیں تعلقات کب اور کیسے خراب ہوئے۔ اسحاق ڈار کے بعد نواز شریف بھی وطن واپسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل معاشی کینسر کا علاج ڈسپرین سے کر رہا ہے۔ کال تب دوں گا جب جو میرے مخالف ہیں، جب وہ سمجھیں گے کہ عمران خان پیچھے ہٹ گیا، میں تب کال دوں گا جب مجھے پتا ہوگا کہ میری ایک گیند سے تینوں کی وکٹیں گریں گی۔ وہ جو کال ہوگی وہ کال آخری کال ہوگی، اس کے بعد کوئی مارچ نہیں ہوگی، کوئی دھرنا نہیں ہوگا۔ یہ رانا ثناء اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ اب کان کھول کے سن لو، اس باری کپتان پوری پلاننگ کر کے آئے گا۔ 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا، اور وہ لوگ ابھی بھی اس سازش پہ لگے ہوئے ہیں۔ جب کسی کو ایک امپورٹڈ پرائم منسٹر سازش کے ذریعے ملک کے اوپر بٹھایا جاتا ہے
तो वो मुल्क को इस तरह शर्मिंदा करवाता है। इसको इसलिए नहीं लेके आए कि इसमें कोई क़ियादत की क्वालिटी थी, इसको इसलिए लेके आए कि ये जो भी हुक्म मिलेगा बाहर से, ये सारे हुक्म मानेगा। की आज़ादी के लिए निकलना पड़ेगा हमें। इमरान खान असेंबली में वापसी अमरीकी साइफर की तहकीकात से मशरूत कर दी। एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, पता नहीं ताल्लुकात कब और कैसे खराब हुए। इस आख्तार के बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर, मुल्क दिवालिया होने का ऐलान है। मौजूदा हुकूमत मईशत को ऐसे मकाम पर ले आई कि दवा की बजाय सर्जरी की ज़रूरत है। मिफ्ता इस्माइल मुआशी कैंसर का इलाज डिस्प्लिन से कर रहा है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अब हुकूमत मिली तो माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में सहाफ़ी अयास अमीर को आज अदालत में पेश किया जाएगा। अयास अमीर को पुलिस ने रात के सारा कत्ल केस में गिरफ्तार किया था। मुकदमे में 302 के साथ साथ दफ़ा 109 भी शामिल की गई है। अयास अमीर की अहलिया को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। सहाफ़ी अयाज मीर के बेटे शाहनवाज अमीर को इस्लामाबाद में सिविल जज मुबश्शिर हुसैन चिश्ती की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुलजिम शाहनवाज ने बाहर से बुलवाकर अपनी अहलिया को बेदर्दी से कत्ल किया। पुलिस की जानिब से मुलजिम शाहनवाज के 10 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर जज ने शाहनवाज के वकील से सवाल पूछा कि कुछ बोलना चाहते हैं। मुलजिम शाहनवाज के वकील का कहना था कि ब्लाइंड मर्डर है, पहला रिमांड है, कोई एतराज नहीं, ये कत्ल अभी सिर्फ इल्जाम की हद तक है। पुलिस की जानिब से मुलजिम के फिंगरप्रिंट की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। कैनेडियन शहरी सारा के कत्ल के बाद अहले खाना का मौकफ भी सामने आ गया। सारा के चचा के मुताबिक अयाज अमीर और उनकी साबिक अहलिया ने उनकी भतीजी का कत्ल किया। तफ्तीशी जराई के मुताबिक मुलजिम शाहनवाज ने अपनी अहलिया को अपनी दीगर 2 शादियों के बारे में नहीं बताया था। मुलजिम शाहनवाज अपनी बीवी सारा से हीले बहानों से पैसे मंगवाता था, गाड़ी भी अपने नाम लगवा ली, जिसके बायस झगड़ा हुआ। मोहम्मद अवैस, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सैलाब के बायस बोलान का पिंजरा पुल बह जाने से बलूचिस्तान के दीगर इलाकों से राब्ता अभी तक बहाल ना हो सका। कौमी शाहराह की मुकम्मल बहाली ना होने के बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि बोलान में पिंजरा पुल बह जाने से बलूचिस्तान के दीगर इलाकों से राब्ता अभी तक बहाल नहीं हो सका है। कौमी शाहराह की मुकम्मल बहाली ना होने के बायस मुसाफिरों को भी शदीद परेशानी का सामना है। सैलाब के बायस बलूचिस्तान का पिंजरा पुल बह जाने से बलूचिस्तान के दीगर इलाकों से राब्ता अब तक बहाल ना हो सका। कौमी शाहराह की मुकम्मल बहाली ना होने के बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रमेश कुमार से। रमेश, बताइएगा। जी, ये बोलान का इलाका है, पिंजरा पुल, जहाँ पर हालिया बारिश और सैलाब के बाद जो पुल बह गया था, आज उसको 1 माह बीत चुका है, पर उसके बावजूद जो कि पुल की मरम्मत मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ये भी आपको बताता चलूँ, जो कोयटा का अंदरूनी बलूचिस्तान और मुल्क भर से जो ज़मीनी राब्ता है वो भी मुंतका हुआ पड़ा है। और ये भी आपको बताता चलूँ, जो सिंगल रोड 1 वे करके बनाया गया था, पर उस पर जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त है वो घंटों घंटों खड़ी रहती है, जिसकी वजह से मुसाफिर शदीद परेशान हो रहे हैं। इस हवाले से जब हमने मुसाफिरों से बात की है तो मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस कौमी शाहराह को बहाल करने के लिए जल्द से जल्द इक़दाम करे और इसके अलावा इस रोड को 1 वे करके चलाया जाए, जो मुसाफिर फंसे हुए होते हैं उनकी मुश्किलात में आसानी आ सके। और ये भी आपको बताता चलूँ, इस कौमी शाहराह की बहाली के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इस कौमी शाहराह पुल का मुआयना भी किया था और इसे जल्द से जल्द बहाल करने के अहकाम भी किए थे, जिस पर अभी तक कोई अमल दरामद मुकम्मल तौर पर नहीं हो सका है। नहीं हो सका है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश कुमार आपका। मीरपुर खास में गरीब हारी की कपास की फसल सैलाब ने खराब कर दी। साल भर की कमाई से महरूम इन गरीब हारियों ने खराब कपास को काबिल इस्तेमाल बनाने का तरीका ढूंढा है। हमारे नुमाइंदे बिलाल महमूद से जानते हैं कि किसान किस तरह से इस खराब फसल को काबिल इस्तेमाल बना रहे हैं।
मीरपुर खास जिले में सैलाबी सूरत हाल के बाइस हर तरफ तबाही के मनाजिर देखने में आते हैं। लोगों के घर मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। यहाँ पर अगर नुकसान के हवाले से बात की जाए तो ज़राअत सबसे ज़्यादा नुकसान मीरपुर खास जिले में लोगों के घरों के साथ ज़राअत को पहुँचा है। ज़राअत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। कपास की फसल के हवाले से बात करते हैं तो कपास की फसल मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर कुछ मुतासिर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये पानी में जाते हैं और ये निकाल कर लाते हैं और उसको सुखाते हैं। वाले इसका वजन पानी का कम करके वाले इसको सुबह देते हैं बच्चों को। बच्चा शहर में लेकर जाता है, वहीं 300-400 इससे को आते हैं। ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनके इलाकों से पानी की निकासी को मुमकिन बनाया जाए, साथ साथ जो इनकी फसलें तबाह हुई हैं उसके ऊपर सिंध हुकूमत इनके साथ ताउन करें, इनको रिलीफ फराहम करें। इनकी ज़मीनें बर्बाद हो चुकी हैं, इन्हें कम से कम इमदादी सामान फराहम किया जाए जिससे ये अपना गुजर सफ़र जो है वो कर सकें। जी, सवात में सैलाब को गुजरे 1 माह हो गया। बड़े बड़े होटल और घर सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। शहर में सैलाब मुतासिर और इंफ्रास्ट्रक्चर की इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे हारून सिराज से। बिल्कुल, स्वात में सैलाब को 1 माह मुकम्मल होने को है और अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात की जाए तो 1 माह बाद सिचुएशन ये है कि जो रोड बहरीन से लेकर कालाम तक 19 मकामात पर जगह जगह सैलाब की नज़र हो गई थी, तो वो रोड जो है मुकम्मल तौर पर आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। अल्टरनेट रूट जो है उसके ज़रिए कालाम तक रसाई मुमकिन है, बल्कि कालाम से भी आगे उतरोल गबराल तक जो है रास्ते मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए हैं। रोड कनेक्टिविटी इस वक्त बहाल है। बहरीन से आगे लामबट एक ट्रैक है जो कि 1 किलोमीटर ट्रैक है और मुकम्मल तौर पर सैलाब की नज़र हो गई थी, तो उसके बजाय अल्टरनेट रूट जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन 1 से 2 दिन में वो ओरिजिनल NHA का जो मुकम्मल रोड है वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। जो बालाई स्वात में सैलाब ज़दगान है, जिनके नुकसान हुए हैं, जिनका घर बह गया है, उन तक अभी सूबाई हुकूमत की जानिब से जो असेसमेंट कमेटी है उनके एहलकार अभी तक वहाँ नहीं पहुँच चुके, क्योंकि कल उनका डेडलाइन है और डेडलाइन तक उनको ये मुकम्मल रिपोर्ट सबमिट करना था। लेकिन हमारी इत्तलात ये है कि अभी तक जो है उनकी रिपोर्ट अधूरी है और कंप्लीट नहीं हुई। इसी तरह सैलाब ज़दगान की सूबाई हुकूमत से अभी तक कोई इमदाद वसूल नहीं हुई। जी, फैसलाबाद में निजी तालीमी इदारे भी सैलाब ज़दगान की मदद में पेश हैं। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस की जानिब से निजी तालीमी इदारों के ताउन से सैलाब मुतासरीन के लिए अब तक 6 ट्रक इमदादी सामान के सैलाब मुतासरीन के लिए रवाना किए गए हैं और मजीद सामान इकट्ठा करने के लिए इमदादी कैंप्स ताहाल कायम हैं। शौकत वट्टू की रिपोर्ट। फैसलाबाद में निजी तालीमी अदारे भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मैदान में आ गए। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस और निजी तालीमी अदारों की जानब से अब तक 6 ट्रक इमदादी सामान जमा करके सैलाब मुतासरीन को भिजवाया जा चुका है। इस मुश्किल घड़ी में अपने सैलाब ज़दगान वाले जो भाई हैं जो इतनी मुसीबत में हैं, उनकी बढ़ चढ़ के मदद करें, उनको रिलीफ दें। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस सदाकत हुसैन लोधी का कहना है, मुश्किल घड़ी में सैलाब ज़दगान की इमदाद में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स अलायंस ने इन सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है और कर रहा है और मजीद करता रहेगा। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के ओहदेदारों के मुताबिक इमदादी सामान में अद्वियात, खुश्क राशन, पानी की बोतलें और दीगर अशिया जरूरिया शामिल हैं। कैमरामैन वकार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। सैलाब के बाद आज़ाद कश्मीर के शहर बाग में सयाहती सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से बुलंद तरीन मकाम नांगा पीर को सयाहों के लिए मुतारिफ करवाया है। रिपोर्ट करेंगे अजहर नज़ीर अब्बासी। बाग में सयाहती सरगर्मियां बहाल। हुकूमत ने 8,750 फीट बुलंद सियाहती मकाम नांगा पीर को मुतारिफ कराया। इस सिलसिले में 40 से जायद मोटरसाइकिल राइडर्स को मदऊ किया गया। बाइकर्स का शानदार इस्तकबाल। जब तक लोग आते हैं और पेमेंट अगर करते हैं तो ये सैलाब ज़दगान के लिए मैं वक्फ करूंगा। राइडर्स की आमद पर मकामी लोगों में काफी जोशो खरोश पाया गया। आजाद कश्मीर हुकूमत मुस्तकबिल में सयाहत को मजीद फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। अजहर नज़ीर अब्बासी, न्यू न्यूज़, बाग। आपको बताएं कि महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर ख्वार हैं, कतारों में लगकर आटा और घी खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानेंगे वक्कास गौरी की इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर के बाहर आटा और घी के लिए शहरी ख्वार। यूटिलिटी स्टोर के बाहर लाइनें लगी रहीं। अवाम सारा दिन सस्ते आटे और घी के लिए ख्वार होते रहे। शहरियों का कहना था यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया इनसे नारवा सलूक कर रही है। एक शहरी के शनाख्ती कार्ड की कॉपी फाड़कर इसे बाहर निकाल दिया गया, जबकि घंटों से इंतजार में खड़ी खवातीन को एक्सपायरी ID कहकर वापस भेज दिया गया। सर मैंने सामान ले लिया सारा,
सामान लेके उनके पास गया हूँ, मैंने कहा सर ये फ़ोटो कापी मेरे पास है, कहा नहीं असल लेके आओ। मैं कहा सर मेरा चलान हुआ है, मैं रचका चलाता हूँ रात को। उसने पाड़ के फेंक दिया, जाओ बाय। मैंने ये अपना शनाख्ती कार्ड अंदर दिखाया, उन्होंने कहा ये नहीं चल रहा। मैंने कहा आप मेरे मियाँ का ले लें, उनके ऊपर राशन दे दें, तो उन्होंने कहा नहीं भी ये नहीं चलता। अवाम का कहना है महंगाई की चक्की में पीसे शहरियों को सारा दिन कतार में खड़े रखना और फिर इनके इस्ते नफ्स मजरू करना इंतहाई अफसोसनाक अमर है। कैमरामैन ख्वाजा फाहिम के साथ वकास गौरी, न्यूज़ लाहौर। महंगाई से तमाम बुनियादी अशिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। दीगर अशिया की तरह कोयटा में दूध और दही की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में चाय की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे इस्मत अमान समलानी की इस रिपोर्ट में। कोयटा शहर में दूध दही की कीमतों में भी इजाफा, होटल मालिकान ने चाय की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं महंगाई के बेकाबू जिन ने गरीबों की जिंदगी को अजीरन बना दिया है, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया का कारकर्दगी खामोश तमाशाई से ज्यादा नहीं। दूध वाले मौत में इसने रेट बढ़ाया, कोई कानून नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है कि ताकि लोग इनसे पूछे कि भाई आप लोगों को क्या तकलीफ है कि दूध बढ़ गया, दूध का रेट क्या बेंस भी पेट्रोल से चलती है। कोयटा में दूध दही की कीमत में फी किलो 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया। दूध 150 रुपए में जबकि दही 180 रुपए में फरोख्त होने लगा। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ अस्मत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। उधर पेशावर में कूड़ा करकट को साइंसी बुनियादों पर तल्फ करने के लिए सैनिटरी लैंडफिल साइट का पहला सेल कायम कर दिया गया है। सैकड़ों केनाल अराजी पर मुश्तमिल सेल में 1,20,000 टन कूड़ा करकट डंप करने की गुंजाइश है, जिससे ज़ेरे ज़मीन पानी भी आलूदा होने से महफूज होगा। रिपोर्ट करेंगे पेशावर से जमील खान। पेशावर के इलाका शमशतुर डंपिंग साइट में सेंट्री लैंडफिल साइट का पहला सिल तैयार। सिल 130 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा है, जिसमें 1,20,000 टन कूड़ा करकट डंप करने की गुंजाइश है। हमारे तकरीबन 4 ट्रांसफर स्टेशन हैं, वहाँ पर डेली बेस पर उनको ले जाया जाता है और वहाँ ट्रांसफर स्टेशन से पेशावर से तकरीबन 30 किलोमीटर बाहर है, यहाँ पर लाया जाता है। तकरीबन 800 से लेके 1000 टन इसको हम डेली यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं जी। सिल में कूड़ा क्रिकेट जदीद साइंसी तरीके से तलफ किया जाएगा, जिससे ज़ेरी ज़मीन पानी भी महफूज हो जाएगा। जो भी करीबी मतलब एक करीब के या पास के इलाके हैं ना, तो जब ये इंजीनियरिंग तरीके से हम कचरा को तलफ करेंगे तो वो वाले यानी जितने भी इनके मुज़र असरात हैं ना वो नहीं होंगे। रोजाना की बुनियाद पर पेशावर में 1000 टन पैदा होने वाले कचरे को मौजूद तरीके से टिकाने लगाने के लिए कायम इस सेल पर 20 मिलियन रुपए से ज्यादा अखराजात आए हैं। पेशावर के अवाम ने भी इस सेल के क़याम को सफाई के लिए मौजू करार दिया। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ जमील खान, न्यूज़ पेशावर। और जनाब, इतवार का दिन हो और कराची के शहरी हलवा पूरी का नाश्ता न करे। कराची के शहरियों ने छुट्टी का आगाज भरपूर अंदाज में करने के लिए नाश्ता पॉइंट्स का रुख किया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे तैमूर शकील से। देखिए, छुट्टी के रोज़ कराची के शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो कराची के मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख करती है और मज़े के खानों से लुत्फ़अंदोज़ होती नज़र आती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की मशहूर और मारूफ रोड बंस रोड पर, जहाँ शहर कायद की आवाम बड़ी तादाद में बंस रोड का रुख कर रही है और मज़े के खानों से लुत्फ़अंदोज़ होती नज़र आ रही है। इस हवाले से जब होटल मालिकान से बात की तो होटल मालिकान का कहना था कि शहर भर से और मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो आवाम आती है और मज़े के खानों से लुत्फ़अंदोज़ होती है। शहरियों का कहना था कि बंस रोड का रुख इसलिए करते हैं कि बंस रोड पर मुख्तलिफ इक़साम के खाने दस्तयाब होते हैं और छुट्टी के रोज़ फैमिली के साथ निकलने का मज़ा अलग होता है। फैमिली को भी टाइम देना होता है और साथ ही साथ अच्छा नाश्ता मिल जाए और मौसम खुशगवार हो तो बहुत बेहतर महसूस होता है। इसी हवाले से आपको मज़ीद बताएं कि ना सिर्फ बंस रोड बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी जो हैं वो नाश्ता पॉइंट्स का रुख करते हैं और मज़े के खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते नज़र आते हैं जी। और जनाब, फैसलाबाद में भी मौसम खुशगवार है। शहरी अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ बाहर नाश्ते के लिए निकले हैं। गर्मा गर्म हलवा पूड़ी, सिरे, पाए, पठूरे और मीठी लस्सी से नाश्ता किया जा रहा है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे वकास शिराज। आज बिल्कुल, आज अगर फैसलाबाद में मौसम के हवाले से बात की जाए, मौसम भी इंतहाई औसम हो चुका है और साथ में आज छुट्टी का दिन भी है। इसी वजह से जो है शहरी की बड़ी तादाद जो है नाश्ता पॉइंट पर पहुंची है। अपनी फैमिलीज़ के हमरा, बच्चों के हमरा जो है ख़वातीन हैं जो यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, हलवा पूड़ी खाई जा रहा है और खूब इंजॉय किया जा रहा है। उनका कहना है बच्चे पार्टी जो है वो खासी पुरजोश भी दिखाई दे रही है। उनका कहना है छुट्टी भी है और अपने पेरेंट्स के साथ इंजॉय करने के लिए भी यहाँ पे पहुँचे हैं। बच्चों से बात करते हैं, बड़ों से बात करते हैं, क्या कहते हैं जी। आप क्या कहेंगे, आज छुट्टी का दिन है, कैसे इंजॉय कर रहे हैं? आज बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि हम आज पूरी खा रहे हैं।
اور پاپا میں آج لے کے آئے کیونکہ آج سنڈے ہے. مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے. یہ ہم آتے رہتے ہیں ہر سنڈے, یہی ہے. آج موسم بھی تھوڑا سا بہتر ہے تو بچوں کا یہ پسندیدہ ہے فوڈ, یہ حلوہ پوڑی وغیرہ جتنے بھی ہے سلسلہ, یہ آتے رہتے ہیں سنڈے, یہی انجوائے. آج آپ کو پتہ ہے کہ ویدر بھی بہت اچھا ہے. جی بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں, بڑے بھی انجوائے کر رہے ہیں, اور حلوہ پوڑی کھایا جا رہا ہے, ساتھ میں جو ہے لسی پی کر خوب جو ہے لطف اندوز ہوا جا رہا ہے. بچے بھی پرجوش ہیں, بڑے بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آج بچوں کے ساتھ جو ہے آج سنڈے کے دن کو منا رہے ہیں. جی لاہور میں کل سے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے. گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا. ہمارے نمائندے حافظ محبوب علی اس وقت لبرٹی کے گول چکر پر موجود ہیں, ان سے موسم کا مزید احوال جانتے ہیں. جی بالکل, لاہور شہر کے موسم کی بات کی جائے تو موسم اس وقت خاصا سخانہ ہے. کبھی سورج میاں اور بادلوں کے درمیان جو ہے وہ آگ مچولی کا سلسلہ جاری ہے. سورج بادلوں کے گھیرا تنگ کر لیتا ہے, اور کبھی جو بادل ہیں وہ سورج کے آگے جو ہے گھیرا تنگ کر لیتے ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ موسم بھی جو ہے وہ خاصا خوشگوار ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 روز تک جو ہے وہ لاہور میں جو ہے سورج اور بادلوں کے درمیان آگ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ہلکی ہلکی بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے. آج جو ہوا میں نمی کا تناسب 83% ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ لاہور شہر میں اس وقت جو ہے 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں. آج چھٹی کا روز ہے. زندہ دلانے لاہور جو ہے صبح کے وقت ناشتے کے لیے بھی باہر نکلے. ان کا کہنا تھا کہ آج چھٹی کا دن ہے اور جو سورج اور بادلوں کے درمیان آگ مچولی کا سلسلہ جاری ہے اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. لیکن گزشتہ 2 روز سے جو ہونے والی بارش کے بعد جو ہے وہ سردی جو ہے وہ خاصی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے, لیکن جو گرمی تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. اب جو ہوائیں ہیں اس میں بھی ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی محسوس کی جا رہی ہے, اور آئندہ 2 روز تک یہ جو بارش کا سلسلہ ہے وہ لاہور کے مختلف علاقوں میں جاری رہنے کا امکان بھی ہے.